Once again, I, Dr. Shobha, welcome you all in this third session of the webinar. We have been discussing the myriad roles of teachers during this pandemic situation, but something most important we still need to address as to how we could handle this pandemic situation gracefully, focusing upon our health, fitness, and mental well-being. Instead of facing the situation with restriction and resolve epithet, we teachers could help students create peaceful and stable thought. It is imperative that we do our bit to stop the chain of infection, to help students progress academically, taking on community leadership roles, adhere to particular strategies for taking care of themselves, as well as how to handle stressful scenarios. So, here in this third session, we shall address teacher as a promoter of mental health and hygiene. We have among us Professor Amita Bajpai. Professor Amita Bajpai, HOD and Dean of the Faculty of Education, Lucknow University. She has a 30 years of long teaching experience at the undergraduate, postgraduate, and research. She is adroitly handling various academic and administrative responsibilities. She is also associated with curriculum development, module writing for B.Ed and distance education courses. She has published several books and papers in national and international seminars and journals, conducted numerous workshops and research refresher courses. We are very honored to have you, ma'am, as our speaker today. So now I invite Professor Thank you Amita so much. Bajpai to take over the session. Thank you. Thank you, Shobha. A very good afternoon to every participant. First, I would like to thank the organizer of this webinar who has given me a chance to speak or to share my views on a topic which is very close to my heart, and that is mental health and hygiene, and also the role of teachers to promote their mental well-being in their students. But I don't have any ready-made solution for this problem, mental health problems. As you can see कि आजकल हमारे जो चैनल्स में आप देखते हैं कोरोना के लिए कितने रेडीमेड सॉल्यूशन आप पाते हैं, कितने कोई आपको बताएगा कोरोना से बचना है तो ये वाला काढ़ा पीजिए, ये वाली दवा पीजिए, हर कोई अपने आप को एक डॉक्टर समझने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से कोई एक जो ट्रेन्ड डॉक्टर है वही कोरोना के लिए एक सही दवा बता सकता है। उसी तरह से जो एक ट्रेन्ड टीचर है या एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट है, केवल वही मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं, उनके बारे में कोई सलाह दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, कुछ भी रेडीमेड सॉल्यूशन देते रहें। मेंटल हेल्थ क्या है, पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। बिना उसको अंडरस्टैंड किए आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप किसी को कोई भी सलाह दे पाए, और वो अगर होगी तो वो फिर ऐसे ही सलाह होगी जैसे वो नीम हकीम डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट को दवाइयां देते रहते हैं और उनकी हालत और खराब करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी टीचर को किसी अपने स्टूडेंट के लिए या कम्युनिटी में जो इस समय जो क्राइसिस है, जो कोरोना का आउटब्रेक है, उसकी वजह से जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंजाइटीज हैं, लोगों के मन में फियर है, फोबिया है, उन सब के लिए अगर सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेंटल हेल्थ क्या है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ क्या है वो जानने से पहले मैं अगर ये पूछूं आप लोगों से कि व्हाट इज द एक्चुअल मेन रोल ऑफ एजुकेशन, और रादर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ एजुकेटेड पर्सन, तो आप उत्तर तो अभी नहीं दे सकते, बट मैं आपके आंसर्स एज्यूम कर सकती हूँ। आप ये बताएंगे कि जो शिक्षित है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होगा, बिल्कुल ठीक है। उसकी जो एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी है वो एक अशिक्षित व्यक्ति से बेहतर होगी, बिल्कुल ठीक है। उसमें कुछ
फ्रस्ट्रेशन कम होंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेगा, उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ गई होगी, उसके अंदर, या किसी भी तरह से कहें तो एक जो शिक्षित व्यक्ति की लाइफ है वो एक उस व्यक्ति से बेहतर होगी जो अशिक्षित है। ठीक है, इससे आप सभी एग्री करेंगे कि जो कम शिक्षित है, अशिक्षित है, उससे एक शिक्षित व्यक्ति की लाइफ, उसका जीवन डेफिनेटली बेहतर होना चाहिए। बट व्हाट वी एक्चुअली गेट, हमें क्या मिलता है? हमारे डेटा बताते हैं कि जितने सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो हाईली एजुकेटेड लोगों में पाई जाती हैं। फ्रस्ट्रेशन के केसेस, एंजाइटी के केसेस उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। क्यों होता है कि कोई कैफे कॉफी डे का मालिक, अगर बिजनेस उसका फ्लॉप हो जाता है तो उसे और कुछ समझ में नहीं आता सिवाय सुसाइड करने के? क्यों होता है कि कोई जिया खान या प्रत्युषा बैनर्जी जो सेलिब्रिटीज हैं, जो घर घर में नोन है, जानी जाती हैं, लेकिन अपने इमोशनल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उन्हें और कुछ समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि अपनी जान दे दें? क्यों होता है कि बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आउट होते हैं और स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं? वो सब एजुकेटेड हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन, हम एज टीचर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो दे रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, मैं लैंग्वेज टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन ये जो लाइफ स्किल्स हैं इनकी एजुकेशन नहीं दी जा रही। अपने लाइफ को कैसे हैंडल करें, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, वो हम नहीं देते। मिसिंग क्या है? एजुकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। आप देखिए फिजिकल हेल्थ पर कितना जोर होता है। स्कूल में शुरू से ही बच्चों के एक डॉक्टर अपॉइंट होता है जो रोज चेक करता है कि बच्चे के दांत साफ है कि नहीं, बच्चे के नाखून साफ है कि नहीं, उसकी ड्रेस साफ है कि नहीं, उसने नहाया है या नहीं नहाया है। ये सारी चीजें बच्चों को फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हाइजीन की बचपन से सिखाई जाती है। उनको पता होता है फिजिकल हेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं, और आप उन सिम्टम्स के आधार पर बहुत आसानी से जान लेते हैं कि आप फिजिकली इल होने वाले हैं, अब बीमार होने वाले हैं। शरीर में थकान है, टेम्परेचर है, हीमोग्लोबिन कम है, शुगर ज्यादा है, बीपी बढ़ा हुआ है, सोडियम बढ़ा है, स्वेलिंग है तो यूरिक एसिड बढ़ी है। आप तुरंत सिम्टम्स देखते हैं और तुरंत उसके हिसाब से अपना इंतजाम करते हैं कि मैं कैसे उन सिम्टम्स को दूर करूं और फिर से फिजिकल हेल्थ को अटेन करूं। पर हम में से कितने लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं? मेंटल हेल्थ से, आप मेंटल हेल्थ की स्टेट से जैसे ही आप मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, कितने लोग हैं जो उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति अब मेंटल इंसैनिटी की तरफ बढ़ रहा है, मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहा है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको किसी तरह के इलाज की जरूरत है। क्यों होता है कि जब कोई सुसाइड कर लेता है तो लोग कहते हैं रात में तो हमारे साथ खाना खाया था, रात में हमारे साथ बैठा था, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि वो सुसाइड कर सकता है। वो व्यक्ति रात में बैठता है, सबके साथ खाना खाता है, डिनर लेता है, सोने अपने कमरे में जाता है और सुबह आप पाते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। क्या ये अचानक हुआ होता है? नहीं, हमारे व्यवहार में, हमारे मेंटल स्टेट में चेंजेस आए होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो सिम्टम्स क्या है। हम उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वन फाइन मॉर्निंग वी फाइंड दैट द पर्सन हैज गॉन इनसेन। तो मेंटल हेल्थ क्या है वो हमारे टीचर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिना उस कॉन्सेप्ट को समझे हम नहीं बता पाएंगे कि अगर कोई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो मेंटल हेल्थ क्या है उसके उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके फिर हम टीचर्स के रोल पर आएंगे। मेंटल हेल्थ का WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, state of well-being in which the individual realizes his or her own potential. Potential means positive potentials भी and limitations also. So ये ability है and also it's a ability of the person to cope with the stresses of the normal life. आप normal life में भी देखें तो stresses होते हैं, ऑफिस में जाना है, टाइम पर पहुंचना है, लंच प्रोवाइड करना है, ये कोई टास्क है, कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, ये छोटे छोटे जो लाइफ है तो ये स्ट्रेसेस होते हैं। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति इन स्ट्रेसेस को बहुत आसानी से कोप अप करता रहता है
आप जो भी काम करते हैं आप उसको प्रोडक्टिवली करें, उसको फ्रूटफुली करें, और आप अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को जिसके आप पार्ट हैं उसको आप कंट्रीब्यूट करें। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक और डेफिनेशन है, जो एक और तरीका है जो डिफाइन करता है कि इट्स एन एबिलिटी टू मेक adequate adjustment to the environment, to your surrounding, on the plane of reality। आप देखिए ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसमें, है ना। वो कीवर्ड्स क्या है? एडजस्टमेंट एंड एडिक्वेट एडजस्टमेंट। एडिक्वेट एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, टू द सराउंडिंग एंड ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी। ये इंडिविजुअल की कुछ एबिलिटीज के बारे में बताता है। आपकी एडजस्ट करने की एबिलिटी क्या है, आप के अपने एनवायरमेंट को, how minutely you observe your environment, how minutely you can understand what are the possibilities, what are the limitations in the environment, और उस हिसाब से आप एक adequate adjustment करते हैं। वो प्लेन ऑफ रियलिटी, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है। रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना, और फिर उन रियलिटीज के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाना, एडजस्टमेंट करना। ये एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल की क्वालिटी होती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन your head, your feelings, your heart, and your actions. That means your body. आपके सोचने में, आपके महसूस करने में और आपके करने में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, तो इसका मतलब आप मेंटली हेल्दी हैं। आप जो काम करना चाहते हैं, आपने सोचा कि आज मुझे ये सेमिनार, ये वेबिनार अटेंड करना है, आपने, आपका मन था और आपने ऐसी परिस्थितियां बनाई, ऐसी सुविधाएं जुटाई कि आप बाकी चीजों से मुक्त होकर पूरी तरह से इस वेबिनार को अटेंड कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आप इस समय एक परफेक्ट स्टेट में हैं। लेकिन अगर आपने सोचा तो था कि अटेंड करें, लेकिन इसी समय कोई दूसरा भी प्रॉब्लम है, सारे सेशंस के बीच में कुछ और चीजें हैं, आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपको उनकी वजह से बीच में उठना पड़ा है, कुछ सेशन छोड़ने पड़े हैं, तो आप कोशिश तो कर रहे हैं, बट आपका एडजस्टमेंट, आपकी मेंटल स्टेट, आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो उस व्यक्ति की तुलना में कम बेहतर होगा जो इस समय अपने पूरे तन मन से इस जो वेबिनार है, इस सेशन में जुटा हुआ है। ठीक है, एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में भी हम इसको समझ सकते हैं कि आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, और आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है, आप महसूस करते हैं कि उस तरीके से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एक आईएएस बन के आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और आप आईएएस बन जाते हैं, आप उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक परफेक्ट एडजस्टमेंट की स्टेज में हैं। लेकिन आप बनना चाहते हैं आईएएस, लेकिन आप जानते हैं आपके घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि जो आपको एक अच्छी किताबें, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सके, तो आप अपने टारगेट को चेंज कर लेते हैं कि ठीक है, मैं अब ये ना बन के ये करूंगा। तो आपका जो विचार था, आपकी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, और आप जो एक्चुअली कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो उसकी वजह से आप उतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी किसी एक उस व्यक्ति की तुलना में हो सकती है जहां पर इन तीनों में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, ये जो हमने, कभी हम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की स्टेज में होते हैं, कभी हम नहीं होते हैं, इसको हम समझें। ये जो परफेक्ट एडजस्टमेंट की स्टेट होती है, इसको समझने के लिए मैं ये एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। जैसे आप जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो एक इंडिविजुअल होता है, एक बायोलॉजिकल बीइंग, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद सब इन्नेट कैपेबिलिटीज, सब इन्नेट क्वालिटीज, जिसको उसे बाहर मैनिफेस्टेशन करना होता है, बाहर प्रकाशित करना होता है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, उसके आसपास एक सराउंडिंग होती है, पहले उसकी फैमिली होती है, उसके बाद उसकी सोसाइटी होती है, नेबरहुड होता है, उस सोसाइटी की अपनी डिमांड्स होती है। तो वो जो व्यक्ति की अपनी फिजिकल जो नीड है, उनका जो मैनिफेस्टेशन है, या जो इंटरनल नीड्स हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं रह जाती हैं। उनका जो एक्सटर्नल डिमांड्स के साथ, जो सोशल प्रेशर्स के साथ, सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ इंटरेक्शन होता है, और एक नई तरह की नीड पैदा होती है,
जिसे हम कहते हैं साइको सोशल नीड। साइको सोशल नीड को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम खाना खाते हैं, भूख लगती है, फूड, ये इट्स अ प्योरली बायोलॉजिकल नीड। लेकिन क्या हम कुछ भी पका के एक साथ, दाल में भीगी हुई रोटी अगर मिल जाए तो आप खा लेते हैं? नहीं, आप उसको अलग कर देते हैं, है ना। आपका मन है कि आपको पिज्जा खाना है, तो भूख लगने पर आप इंतजार करते हैं कि जब पिज्जा आएगा तभी आप पिज्जा खाएंगे। या रोज जो बच्चे टिफिन लेकर जाते हैं, आप देखिए वो रोज अपनी माँ से शिकायत करते हैं, मुझे एक ही सा टिफिन मत दो, है ना। रोज बच्चे वैरायटी, तो मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये क्या है? फूड तो आपको अपनी नीड्स पूरे करने के लिए चाहिए ना, पर उसमें वैरायटी होनी चाहिए। ये एक सोशल एस्पेक्ट उसमें जुड़ जाता है। ठंड है, आपको ठंड बचत करने के लिए स्वेटर पहनना है, शॉल पहनना है, लेकिन क्या आप आउटडेटेड स्वेटर पहनकर चले जाएंगे? क्या आप बिना मैचिंग का शॉल पहनकर कोई पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं? पर्पस तो आपका होता है अपने आप को ठंड से बचाना, पर ये प्योरली फिजियोलॉजिकल नीड नहीं रह जाती। उस ठंड से बचाने के लिए आप एक मैचिंग शॉल ढूंढते हैं, एक ऐसा शॉल ढूंढते हैं जिससे जिससे लोग इंप्रेस हो जाएं, ऐसी चीज। तो इसका मतलब एक सोशल एस्पेक्ट उस पर जुड़ गया है। तो ये जो साइको सोशल नीड होती हैं, इनको पूरा करने के लिए कई बार हमारा सोशल एस्पेक्ट इतना डोमिनेंट हो जाता है कि हम जो इंटरनल हमारी डिमांड्स होती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या कई बार होता है कि आपको इग्नोर करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए, मैंने आईएएस वाला एग्जाम्पल लिया, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप एक लीडरशिप क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं और उस जज्बे के साथ आपने अपने सामने एक गोल रखा आईएएस बनने का। आप देखेंगे आईएएस बनने का गोल भी सोशली डिसाइडेड होता है, सोशली डिटर्मिन्ड होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आईएएस का एक सोशल स्टेटस है, एक सोशल प्रेस्टीज है, उसके साथ एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। अगर किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में प्राइमरी स्कूल को सबसे अच्छा, प्राइमरी स्कूल टीचर को सबसे अच्छा माना जाता, तो वहां का व्यक्ति अपने सामने क्या टारगेट रखता कि उसे प्राइमरी स्कूल टीचर बनना है, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट होता। आप अपने सामने लक्ष्य रखते हैं, बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बनना उतना आसान नहीं होता। बैरियर्स होते हैं, एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, और आपके अपने अंदर की लिमिटेशंस होती हैं। हो सकता है आप में उतनी कैपेबिलिटी ना हो, केवल सोशल प्रेशर में अपने अपने सामने वो एक गोल रखा हो। ये भी हो सकता है आपने कैपेबिलिटी रखी हो, लेकिन आपका जो एनवायरमेंट है वो परमिट नहीं करता। अचानक फादर की डेथ हो गई, छोटे भाई बहन हैं, कंपैशनेट ग्राउंड पर फादर की नौकरी आपको मिल रही है, आप डिलेमा में हैं, मुझे क्या करना है, मुझे आईएएस के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या ये नौकरी लेके, जो परिस्थितियां बदल गई हैं, इन बदली परिस्थितियों के हिसाब से जो नौकरी मिल रही है उसको लेकर अपने परिवार को आगे चलाना है ना। आप इसमें से कोई भी डिसीजन लेते हैं। जब आप वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे जो बनना है वो बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, इसका मतलब आपके जो इंटरनल नीड्स हैं, इंटरनल डिमांड्स हैं, दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप उसके लिए एनवायरमेंट को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। पर जब आप पाते हैं कि नहीं, परिस्थितियां इतनी खराब है कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपको अपने गोल में चेंज करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एंड एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस acceptance of this assimilation. Sometimes you assimilate and sometimes you accommodate. प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब हमें एसिमिलेट करना चाहिए तब हम एकोमोडेट कर देते हैं, और जब हमें एकोमोडेट करना चाहिए तब हम एसिमिलेट कर लेते हैं, है ना। इसीलिए आपके अंदर काबिलियत थी और आपकी एक दिली इच्छा थी कि आपको आईएएस बनना है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से आपको एक छोटा क्लरिकल लेवल का जॉब लेना पड़ा। आपने एकोमोडेट कर लिया, जबकि आपको एसिमिलेट करना था। आपने एकोमोडेट किया, आप उस जो जॉब आपने अब लिया है, आप उसको कभी भी करने के बाद जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं पाएंगे। आप वहां जिन लोगों के साथ काम करेंगे, आप देखेंगे आपको उनके साथ आपका मेंटल लेवल मैच नहीं करेगा, आपको उनके साथ बात करना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसे लोग जो हैं वो उस तरह के लोगों को अपने से नीचे स्तर का समझते हैं, उनके साथ बात नहीं करते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपके उस एक गलत डिसीजन से आई, जब आपको एसिमिलेट करना था लेकिन आपने एकोमोडेट कर लिया।
लेकिन कभी कभी आपको एकोमोडेट कर लेना होता है और आप एसिमिलेशन में लगे रहते हैं। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, आठ आठ अटेम्प्ट आप आईएएस के लेते रहते हैं, बच्चे आईएएस के लेते रहते हैं, और उसके बाद जाकर फिर वो ग्रुप सी की सर्विसेज लेते हैं या बहुत नीचे स्तर के जॉब पर उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर कि हमें कब एसिमुलेट करना है और कब एकोमोडेट करना है। ये एसिमुलेशन और एकोमोडेशन हमारे आगे के मेंटल हेल्थ को डिसाइड करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, हमारे घर में, हमारे जॉब प्लेस में हम किस तरह की मेंटल हेल्थ रखेंगे। तो ये केवल एक ऑफिस का एग्जाम्पल था, लेकिन हमारे जो घर में बच्चे आते हैं, हमारे स्कूल में जो क्लासेस में बच्चे होते हैं, उनके भी बहुत तरह के इस तरह के डिसीजन होते हैं लाइफ में जो उन्होंने अपनी मर्जी से या अपनी मजबूरी में लिए होते हैं। जहां उन्हें एसिमुलेट करना होता है वो एकोमोडेट कर रहे होते हैं, और जहां उन्हें एकोमोडेट कर लेना होता है वहां पर वो एसिमुलेशन में लगे रहते हैं। वो कौन से सिम्टम्स हैं जब आप जान सकते हैं कि बच्चा मेंटली हेल्दी नहीं है ना। मेंटली हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो मेंटली इल है। जो मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल फिजिकल हेल्थ की तरह होती है। जैसे अगर फिजिकल हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो गए, है ना। एक एक आइडियल वेट, मान लीजिए मेरी हाइट इतनी है जितनी है, उस हिसाब से मेरा आइडियल वेट 55 केजी होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट 60 केजी है। तो क्या मैं फिजिकली इल हूं? नहीं। बट मैं फिजिकली हेल्दी भी नहीं हूं। फिजिकल हेल्थ का एक एक स्केल होता है, और आप उस स्केल में एक परफेक्ट पॉइंट पर भी हो सकते हैं, लोअर बॉर्डर पे भी हो सकते हैं, और हायर बॉर्डर पर भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेंटल हेल्थ का भी एक स्केल होता है, और आप उस स्केल में इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। कहीं पर आप लोअर साइड में होते हैं, कभी आप हायर साइड में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली इल हैं, है ना। मेंटली इल हो जाएंगे, लेकिन मेंटल इलनेस की तरफ ना बढ़ें। अगर मैं समझ रही हूँ कि मेरा वेट बढ़ रहा है, हायर साइड में है, और फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वन फाइन डे आई विल बी ओबेस, है ना, ओबेसिटी की शिकार हो जाऊंगी मैं। बिल्कुल ऐसा ही मेंटल हेल्थ के साथ भी होता है। अगर आपने उन सिम्टम्स को समझ लिया, अपने स्टूडेंट्स में पकड़ लिया, तो आप उनको वहीं पर चेक कर सकते हैं, वहीं पर उन्हें बैलेंस में, लोअर साइड में, या एकदम परफेक्ट हार्मनी वाली स्टेज पर ला सकते हैं। आप उन्हें धीरे धीरे इंसैनिटी की तरफ, मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं, चेक सकते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करें तो वो डेली बेसिस पर आप अपने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है वो इस समय कोरोना पीरियड में नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं जान रही हूं और आप सब भी जानते होंगे कि इस समय भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस परिस्थिति का पॉजिटिव फायदा उठा रहे हैं। वो घरों में रहकर अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो घरों में रहकर अपनी हॉबीज पूरी कर रहे हैं, वो घरों में रहकर नई नई चीजें सीख रहे हैं, वो घरों में रहकर बहुत से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ जिनकी प्रॉपर है, परफेक्ट है। वो इस जो समय है उसको चुनौती की तरह ले रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं, वो आज मेंटली इल नहीं हो रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ पहले से ही कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर थी, इसीलिए वो इन परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उनको आगे भी मदद कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई पड़ेगा इन बच्चों में। इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, बच्चों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एंजाइटी, किसी भी नई सिचुएशन के लिए एंजाइटी रहती है। ओहो कोरोना आ गया तो अब क्या होगा, हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी खत्म तो नहीं हो जाएगी, महामारी है, क्या होगा, एक एंजाइटी रहती है। डिप्रेशन, है ना, फोबिया। इसके अलावा एग्रेशन, बहुत एग्रेशन, भाई बहनों में घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, छोटे भाई बहन बहुत लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत झगड़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गए हैं। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह बढ़ गए हैं। ये वहां बढ़े हैं जहां पर वो सिम्टम्स पहले से थे, अब एग्रेवेट हो गए हैं, है
पहले उन्होंने उनके कुछ रास्ते ढूंढ रखे होंगे, अब शायद वो उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर एटीट्यूड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, हर चीज में कमी निकालना, ये कमी है। हस्बैंड जो है उनको ज्यादा टाइम मिल गया तो वो पत्नियों में कमी निकालना शुरू हो गए हैं, पत्नियां जो हैं वो पतियों को अब ज्यादा समय घर में देख रही हैं तो वो उनमें कमियां निकालना शुरू हो गई हैं। एक दूसरे की कमियां निकालने वाला एटीट्यूड, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ ठीक है अभी फास्ट फूड अवेलेबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जो है घर में वही खाना है, नहीं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। फिर कोई फिलोसफी नहीं होती है इन लोगों की लाइफ की। जो लोग परेशान होते हैं इस तरह की सिचुएशन में, वो ये समझते हैं कि क्या होता है, हमारी फिलोसफी होती है ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान ऊपर वाला करेगा। इसका मतलब हमारी फिलोसफी है कि कोई ऊपर वाला है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो ऐसे लोग ज्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन जिसकी इस तरह की कोई सोच नहीं होती, इस तरह की कोई फिलोसफी नहीं होती लाइफ की, आपकी लाइफ की जो भी फिलोसफी होती है, आप देखिए वो आपको पकड़ के रखती है, खूंटे की तरह बांध के रखती है। आप कुछ भी करते हैं लेकिन फिर आप डेविएट होने से बचे रहते हैं, वो आपको एक एक सीमा में बांध के रखती है। तो इस तरह के लोगों की कोई फिलोसफी नहीं होती, इमोशनली वीक होते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, दूसरे के इमोशंस को मैनेज करना, अपनी इमोशनल स्टेट को आइडेंटिफाई करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, ये सारी चीजें उनको नहीं आती हैं या उनको सिखाई नहीं गई होती है ना कहीं। जैसे मैंने बताया, हमने फिजिकल हाइजीन के बारे में बच्चों को बताया है, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के पैरामीटर्स को जानते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानते, मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये किसी नए आइडिया को एंटरटेन नहीं कर सकते, ये किसी नए पर्सन को एंटरटेन नहीं कर सकते, ये अपने आप को एंटरटेन नहीं कर सकते, है ना। अपने आप को एंटरटेन नहीं, अकेलापन है ना। कुछ लोग कहते हैं मुझे अकेला अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ये पहला मौका मिला जब मैं अपने साथ, अपने एकांत में अपने आप को जान रही हूं कि मैं क्या हूं। तो वो व्यक्ति अपने आप को जो जानने की कोशिश करता है, वो फिर अकेलेपन से कभी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में नहीं जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको आसपास अपने लोगों में दिखाई पड़ सकते हैं। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये सारे लोग पॉजिटिव, कुछ लोग उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इनमें ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे, ये वो लोग हैं जो नेगेटिव सिम्टम्स, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर उनका ज्यादा फोकस हो रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अब आता है रोल ऑफ टीचर्स। टीचर का क्या रोल होगा इसमें, टीचर क्या रोल कर सकता है। किसी भी जो साइंस है उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ के भी तीन एस्पेक्ट हैं। एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस, प्रिवेंशन फ्रॉम मेंटल इंसैनिटी। दूसरा है प्रिजर्वेटिव एस्पेक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ या प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और तीसरा है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। तो इन तीनों से आप समझ गए होंगे कि टीचर का रोल केवल प्रिवेंशन और प्रमोशन में है, क्यूरेटिव में नहीं है। अगर बच्चा मेंटली इल हो गया, अगर मेंटल इंसेनिटी की तरफ बढ़ गया, उसे क्योर की जरूरत है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसे केवल एक्सपर्ट ही, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, केवल वही उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वही क्योर कर सकते हैं। लेकिन एज टीचर हम प्रिवेंशन और प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम मेंटल इलनेस, मेंटल इंसैनिटी और प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इसमें अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। पहले आते हैं प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन, अगर टीचर ने अपना ये रोल बहुत अच्छी तरह से पहले ही निभाया होता तो आज उसके स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स या कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, जब उन्होंने एजुकेशन ली होगी, अगर वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट उनके एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड होते तो आज वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से सॉल्व कर लेते, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते।
प्रिवेंशन में सबसे पहले जो बच्चा, प्रिवेंशन का मतलब ये हुआ कि जब मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय हमें उन चीजों को चेक करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू माइंड। माइंड पर कंट्रोल करना है। माइंड का जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मेंटल थिंकिंग प्रोसेस है, जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, हमें उनको कंट्रोल करना है, उन्हें राइट डायरेक्शन में ले जाना है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ हम शुरू में चेक कर लेते हैं, बच्चा वीक है, मेल न्यूट्रिशन है, इस चीज की कमी है, प्रोटीन डाइट ज्यादा दीजिए, ये ज्यादा। ऐसे ही जब मेंटल डेवलपमेंट होता है हमें उसी समय चेक करना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीजें हो रही हैं, उसके मेंटल डेवलपमेंट में कहाँ प्रॉब्लम है, और हम उसको वहीं के वहीं चेक करें और उसको राइट डायरेक्शन में ले जाएं। तो सबसे पहले होता है रैशनल एनालिसिस। हम हमारा जो भी मेंटल डेवलपमेंट है वो हमारे बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर से दिखाई पड़ता है। कॉग्निटिव बिहेवियर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आपके पीछे दिमाग में क्या प्रक्रिया चल रही है आप उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे को सिखाना है रैशनल थिंकिंग। आप जो भी थिंकिंग करें वो फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट होकर करें। रैशनैलिटी होनी चाहिए थिंकिंग में। जब हम किसी भी सिचुएशन को बहुत फीलिंग्स के साथ, अफेक्शन के साथ देखते हैं तो हमारे डिसीजन, हमारी एनालिसिस, उस सिचुएशन की एनालिसिस कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाती, सब्जेक्टिव हो जाती है, और हमारा जो डिसीजन होता है वो डिसीजन भी हमारा बहुत टेम्परेरी होता है, लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन नहीं हो सकता। दूसरा, प्रिपेयरिंग इमोशनल बैलेंस शीट। दिन भर में हमें अपने बच्चे को सिखाना है, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है, और हमें खुद भी सीखना है। अगर हम भी आज तक नहीं सीख पाए तो हमें खुद भी सीखना है कि हमें डेली बेसिस पर जो इमोशंस हम फील करते हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर इरप्ट होते हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, उनमें बैलेंस होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो नेगेटिव इमोशन भी थोड़ा सा अगर कहीं मिल रहा है तो हमें उसी समय उसे एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ एडजस्ट करना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे आप न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में लगातार आजकल कोरोना की नेगेटिव, यहाँ पर इतने केसेस पाए गए, यहाँ पर इतने पॉजिटिव हुए, यहाँ इतनी डेथ हुई, यहाँ पर इस तरह का केस हुआ, इस तरह। तो टीवी देखते देखते आप आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर, आप टीवी बंद कर देंगे, लेकिन उसी समय आपने न्यूज़पेपर उठा लिया। तो न्यूज़पेपर उठाने से आप देखेंगे उसमें भी आपको नेगेटिव कोरोना की ही न्यूज दिखाई पड़ रही है। फिर आपने अपने फ्रेंड को फोन लगा लिया, आपने फ्रेंड से बात करी, उसने भी अपने आसपास एरिया में जो लॉकडाउन हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस पर बातें शुरू कर दी। तो आप देखें, आपने जितने भी काम किए उसमें आपके केवल और केवल नेगेटिव इमोशंस ही होते जा रहे हैं। अगर आप एक बैलेंस शीट बनाकर लिखना शुरू करें तो आप देखेंगे सारे जो काम आपने किए उसमें केवल और केवल नेगेटिव इमोशंस आए। तो आपको, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, एक नोट करते हैं, शुरू में आपकी बैलेंस शीट फिजिकल होगी, आप नोट करेंगे, लेकिन बाद में वो एक मेंटल लेवल पर बनती रहती है, नहीं इतने नेगेटिव इमोशंस हो गए, मुझे कुछ पॉजिटिव इमोशंस लाने हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप बाहर निकल के गार्डन में घूमने चले जाएंगे, या आप कोई कॉमेडी फिल्म लगा लेंगे, वो देख लेंगे, या कोई आपकी किसी एक अच्छी चीज, माने कुछ ऐसा काम करें जिससे कुछ पॉजिटिव इमोशंस डेवलप हो। कई बार हम लोग इसीलिए बिना समझे जब हम किसी को सलाह दे देते हैं, हमें लगता है हम उसकी मदद कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हम उसकी मदद नहीं कर रहे होते। जैसे किसी ने आपने कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, आप भी उसके साथ बैठ जाते हैं, सिंपैथी की बातें करते हैं, दुख की बातें करते रहते हैं, आपको लगता है आप शायद उसका कुछ दुख कम करके आए हैं। लेकिन आप पाएंगे कि आप कई बार उसका दुख कम करके नहीं आते हैं, कि जब आप उसके साथ उसी दुखी अवस्था में बैठ जाते हैं, उसी को फील करने लगते हैं, तो उसका दुख, और वो उस दुख की स्थिति से बाहर नहीं निकला। आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो दुख में है, ठीक है, सिंपैथी है, एम्पैथी भी है, पर आपका ऑब्जेक्ट, आपका पर्पस क्या है, उसको उस दुख की स्थिति से बाहर निकालना। तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उसको खुशी मिले, वो उस दुख की स्थिति से बाहर निकले। आप कोई ऐसी बातचीत शुरू करेंगे, कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा टॉपिक लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व होकर अपने उस दुख को भूल जाए। लेकिन अगर आप उसको साथ में लेकर और उसी बातों को करते रहेंगे तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि आपने उसका दुख में उसका साथ निभाया, पर एक्चुअली में आपने उसका दुख बढ़ाया ही है ना। कई बार क्या होता है, आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है। नेगोशिएशन ये एक प्रिवेंटिव टेक्निक है, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है।
हम अगर खुद में नेगोशिएशन आपका दूसरे के साथ होता है, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना, वही वही नेगोशिएशन है, कंप्रोमाइज करते हैं। आपको बहुत सारी चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन हम सेल्फ नेगोशिएशन करते हैं क्या? हम्म? हमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है, हम सुबह दोपहर शाम रात उसी चीज को खाते रहते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम उसी अच्छी अपनी पसंद की चीज में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही लोगों को आजकल बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि उन्हें अब अगर वो पसंद की चीज उपलब्ध नहीं है, तो वो बची हुई जो चीजें हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने नेगोशिएशन की टेक्निक इस्तेमाल करी होती, तो आज वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आज वो इस परिस्थिति में मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते। क्या होता है नेगोशिएशन? अगर मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, तो सेल्फ नेगोशिएशन का मतलब हुआ एक दिन जानते बूझते मैं अपने आप को उस चीज से दूर रखूं। वो चीज सामने है, मुझे दिख रही है, मैं खा सकती हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, पर मुझे पता है कि मैं उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रही हूं, तो मुझे उस इंडल्जेंस से बचना है। मैं एक दिन जानते बूझते अपने आप को उस चीज से दूर रखूं। बहुत मुश्किल होता है, रेजिस्ट होता है, बट उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना और अपने आप को उस चीज में इंडल्ज होने से बचाए रखना, ये होता है आपका सेल्फ नेगोशिएशन। किसी भी चीज से मेरा मन बहुत है, मैं रोज उससे बात करती हूँ, है ना। जैसे जो जो टीनेजर्स होते हैं, किसी को पसंद करते हैं, रोज उनका मन होता है कि रोज उसको फोन मिलाएं और रोज उससे बात करें। धीरे 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 ऑब्सेशन हो जाता है। उन्हें अगर सेल्फ नेगोशिएशन आता हो, तो वो अपने आप को रेजिस्ट करेंगे, अपनी इच्छा को रेजिस्ट करना नहीं। मैंने कल किया था, आज मुझे फोन नहीं करना है, क्योंकि ये गलत इंप्रेशन देगा। तो ये नेगोशिएशन करना अगर हम बच्चे को दिखाते रहे, अगर हम रैशनल एनालिसिस उसे सिखाएं, अगर हम उसे अपने इमोशंस की बैलेंस शीट बनाना सिखाएं, फिजिकल या मेंटल लेवल पे, अगर हम उसे नेगोशिएशन करना सिखाएं अपने दूसरों के साथ और सेल्फ के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ, अगर हम उसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सिखाते रहें, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को वो जान पाए खुद से, या दूसरे लोग उसे जानने में एज टीचर, एज पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को ये जानने में मदद करें कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसके पीछे जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो उसका थिंकिंग पैटर्न है, वो नेगेटिव है। तो उस थिंकिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश करें, तो हम धीरे धीरे उसे एक ऐसी मेंटल स्टेट तक पहुंचा सकते हैं जहां पर किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर पाएगा, उसे फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके प्रिवेंटिव मेजर्स, जो हम अगर लेते रहे हैं या नहीं ले पाए हैं अभी तक, तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ ले सकते हैं। फिर आता है प्रमोशन, नेक्स्ट आता है प्रमोशन। हाउ टू प्रमोट मेंटल हेल्थ इन योर स्टूडेंट, कैसे प्रमोट कर सकते हैं जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो टीचर कर सकता है, केवल इस पीरियड में ही नहीं, बल्कि अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो जब आप अपने रेगुलर फिजिकल क्लासरूम में भी जाएंगे, तो आप हमेशा इन चीजों का ध्यान रखेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते रहेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है, किसी भी तरह की। ये तो एक महामारी थी बच्चे की लाइफ में, कभी कोई साइकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, कभी भी वो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, इसकी कोशिश एक टीचर की हमेशा होगी। तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहला है बच्चे को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देना। लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं अपनी क्लास में। जैसे सबसे पहले तो उसको लिसनिंग एबिलिटी, दूसरों को सुनने की, दूसरों को समझने की, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जानने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। केवल मैं ही सुनाऊं, केवल मेरी ही सोच अच्छी है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग या क्विक डिसीजन। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको फटाफट डिसीजन ले लेना, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। प्रॉब्लम कब होती है? व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू वैल्यूज, व्हेन देयर इज अ डिलेमा, क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर भी हमें बच्चों को डिसीजन लेना सिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि बच्चा फिर एंजाइटी में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर पाता।
तो क्विक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, उसके लिए हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। हम उसके सामने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन दें और उससे कहें वो डिसाइड करे, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में दो तीन तरह के डिसीजन पॉसिबल होते हैं। हर डिसीजन के अपने अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे आप अभी से कई बार प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हम उसको फेस करेंगे, है ना। कई बार हम कहते हैं ये देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हम डिसीजन ही नहीं लेते। वो प्रॉब्लम लिंगर ऑन होती रहती है और हमारी मेंटल स्टेट जो है वो उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, हम उसी में प्रभावित रहते हैं। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तुरंत करना है, जल्दी करना है, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, हमें उसे फेस करने के लिए तैयार रहना है कि क्या करना है। उसके बाद आता है आपका जो छोटे छोटे से स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस करवाएं बच्चों को रोल प्लेइंग के मौके दें, रोल प्लेइंग करवाएं। सेमिनार्स हायर हायर लेवल पे आप सेमिनार्स करवा सकते हैं, डिस्कशंस करवा सकते हैं, सिंपोजियम करवा सकते हैं। कैसे वो स्ट्रेस और इमोशंस के साथ मैनेज करें। कुछ कुछ चीजें कभी कभी मुझे अचानक अभी याद आ रहा है, कुछ कुछ चीजें जो जोक की तरह आती है लेकिन वो बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हम लोग ये एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह ले सकते हैं। जैसे एक जोक आता है कि इनकम टैक्स अपने बच्चों को जब आप छोटे में चॉकलेट देते हैं तो उसका एक थोड़ा सा हिस्सा तोड़ ले, ताकि वो उन्हें आगे इनकम टैक्स पे करने के लिए तैयार करेगा, उसको इनकम टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं होगी। 33% जब उसकी सैलरी से कटेगा या 30% कटेगा तो वो उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको आदत होगी कि ऐसा तो होता ही है। इसी तरह से जब हम कोई छोटा बच्चा कोई चीज ऑफर करता है तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं और फिर कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा, और फिर हम उसे वापस दे देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लेकिन क्या होता है, जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, बच्चा दे रहा है तो ले लो, खा लो, इससे वो सीखेगा शेयर करना। वरना अगर हम यही करते रहेंगे कि हमने एक बार उसे दिया और फिर उससे हमने सिर्फ लेने का नाटक किया, तो उसे पता है कि आगे कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन जब कभी वो बड़ा होता है और असली जिंदगी में उसकी कोई चीज छिन जाती है फिर वो सहन नहीं कर पाता। तो इस तरह के रोल प्ले हमें करवाने हैं जहां पर हम उसे फेल्योर का, उसे ऐसा रोल दे जहां पर उसे फेल्योर होना है, ऐसे गेम में लगाए जहां पर उसे फेल्योर होना है। तो वो फेल्योर को, अपनी लाइफ के फेल्योर को भी एक्सेप्ट करना सीखेगा। वो समझेगा कि जीतना और हारना ये जो है वो केवल फेल्योर वाली चीजें हैं, ये मतलब लाइफ के एक एसेंशियल पार्ट है। आप डॉक्टर नहीं है, आप क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कोरोना की प्रॉब्लम आती है, कोरोना के पीरियड में कोई बच्चा आपके सामने किसी तरह की प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आप कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे। पहले आपको उस बच्चे के मेंटल जो स्टेट है, मेंटल जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसका, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है, उसके जो एनवायरमेंटल, जो उसके आसपास लोग हैं जिनसे उसका वो थिंकिंग पैटर्न अफेक्ट हो रहा है, आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तभी आप उसको किसी तरह का कोई एक सजेशन दे पाएंगे। सिंपल ये कह देना कि आप मेडिटेशन कर लो, बच्चे की प्रॉब्लम है कुछ भी, मेडिटेशन कर लो, वॉकिंग कर लो, नहीं। मैंने कहा आपको, आपका जो आप कोई रिचुअल करा के आप बच्चे के मेंटल हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक, अनलेस एंड अनटिल मेंटल स्ट्रक्चरिंग में चेंज नहीं आएगा, तब तक कोई भी चीज, कोई भी जो आपका सजेशन है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये समझ पाए कि मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और किस तरह हम उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और किस तरह हम बच्चे को ऐसे कौन से सजेशन दें कि वो अपने आप, ऑटो सजेशंस भी हो सकते हैं अगर बच्चा खुद से समझदार है। कई बार वो ऑटो सजेशन देता है मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, और नहीं तो आप एक गाइड की तरह, एक काउंसलर की तरह, एक टीचर की तरह उसे सजेशन दे सकते हैं कि वो क्या करें। लेकिन वो सजेशन केवल रिचुअल्स पर, केवल हैबिट ट्रेनिंग पर, केवल एक्शन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स से, उसके मेंटल स्ट्रक्चर से जुड़े होने चाहिए। अगर आप बच्चे के मेंटल थॉट्स को, उसके मेंटल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे एक मेंटल हेल्थ प्रमोटर हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। अब अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आमंत्रित है। Thank you, ma'am.
We have a few questions, ma'am. Right? But since we are running short of time, I think we won't be able to entertain much questions. But one Okay. question we have from Dr. Yogesh Sharma. Okay. Do you really think that online classes for Hmm. KG students would be KG. Okay. beneficial for them? We are making them stressed with a lot of mobile and laptop usage. Ah, very interesting question, Yogi Sharma ji. No, I will not recommend continuous or long duration of I mean this situation is ये मैं पहले सारे लोगों को ये प्रश्न बता दूं शर्मा जी का प्रश्न है कि ये जो कर्ज जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए हम ये जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं क्या ये सही है क्या उनको बहुत स्ट्रेस उनकी आइज के ऊपर प्रेशर नहीं हो रहा है देखिए हम कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते हम ये नहीं हो सकता कि हम कह दें बिल्कुल कि नहीं कोई क्लास नहीं ले क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का टाइम है क्राइसिस का टाइम है और आप देखेंगे कि डेफिनेटली इस क्राइसिस के खत्म होने के बाद भी ये जो ट्रेंड चला है ऑनलाइन क्लासेस का डिस्टेंट क्लासेस का ई कंटेंट का ई लर्निंग का दिस इज गोइंग टू स्टे ये रुकने वाला है रहने वाला है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बच्चों को इस टेक्नोलॉजी जो उनकी लाइफ का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है उससे दूर करें लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगातार जैसे स्कूल में क्लासेस होते थे 3 4 5 घंटे के उस तरह हम घर में क्लासेस लगा दें वो पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए आप दिन भर में अगर एक दिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कई बार बच्चे अपने जो पीयर ग्रुप है अपने जो साथी हैं उनको मिस कर रहे होते हैं अपने टीचर को मिस कर रहे होते हैं अगर लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग है जॉयफुल है तो उस जॉयफुल लर्निंग को भी मिस कर रहे होते हैं तो अगर हम थोड़ी देर के लिए एक ई लाइन क्लास लगा लेते हैं बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात है लेकिन और बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि उसके लिए घर में उस तरह का एनवायरमेंट तैयार करना होता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है छोटे बच्चों के साथ शायद ऐसे इश्यूज नहीं हो लेकिन मैं अपना एक केस शेयर कर सकती हूँ कि हम जो हायर एजुकेशन में एमए के बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो मुझे पता है उसमें एक बच्ची ऐसी है जिसके पेरेंट्स एब्यूजिव हैं घर का एनवायरमेंट बहुत खराब है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और घर से निकलकर आना क्लास करना उसके लिए थेरेप्यूटिक होता है जितने समय वो यूनिवर्सिटी में आती है डिपार्टमेंट में आती है उतने समय वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहती है और उसे पता है घर जाकर उसे फिर वही एनवायरमेंट इस लॉकडाउन पीरियड में वो उस पूरे समय उस एनवायरमेंट में रहने के लिए बाध्य है और अगर मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन क्लासेस करके उसे उस एनवायरमेंट से थोड़ा दूर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है ये बिल्कुल ठीक है कि लंबे बहुत काम नहीं होने चाहिए ये टाइम ऐसा है जब बच्चे बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आपस में जो सिबलिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंटरटेन कर सकते हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्डिंग बना सकते हैं बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं नई हॉबीज डेवलप कर सकते हैं तो स्कूल को क्लासेस के लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना चाहिए और जब वो ऑनलाइन क्लासेस करें भी तो कंटेंट पे कम फोकस होना चाहिए बच्चों के साथ इंटरेक्शन उनके साथ केवल एक कम्युनिकेशन होना चाहिए ज्यादा सिलेबस तो देखिए जो पढ़ाया जाता है हम लोग सब भूल जाते हैं मेरा केमिस्ट्री में एमएससी है मुझे केमिस्ट्री का कुछ भी याद नहीं है सारी थ्योरीज जो फिजिक्स में मैथ्स में हिस्ट्री में पढ़ी थी वो कुछ याद नहीं रह जाती हैं इतने लंबे समय बाद अल्टीमेटली आप जो बच जाता है अब वो टीचर है तो कंटेंट पढ़ते हैं बट जो टीचर नहीं बने जो कहीं बैंकों में काम कर रहे हैं जो कहीं दूसरे जगहों पे काम कर रहे हैं वो क्लासरूम में उन्होंने जो थ्योरीज पढ़ी थी वो उनके डायरेक्ट काम में नहीं आ रही तो कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए थैंक यू मैम। मुझे लगता है मैम ने इतने अच्छे से चीजों को समझाया है कि अब किसी के पास कोई बहुत प्रश्न ऐसा नहीं होगा। तो समय की पाबंदी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So now I request Dr. Nivedita Raj, Assistant Professor of St. Xavier's College of Education, to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of St. David's College of Education, I, Nivedita Raj, feel privileged to thank our distinguished resource person, Professor Amita Bajpayee, for enlightening us with her valuable views on teacher as a promoter of mental health and hygiene. Ma'am, thank you very much for your thought-provoking address. Indeed, during this lockdown, we are living a simple and satisfied life, though there is COVID-19. Still, we are surviving and adjusting to the situation every day.
children being good observers, imitate people around us. To inculcate in them good behavior, it is essential we guard our own conduct. Mental health promotes adjustment to our environment. It is an indicator of our mental well-being. Mental health is continuous acceptance of assimilation and accommodation. We all need to make judicious decisions regarding this and do away with fault-finding attitude and promote emotional balance. We really need to look inside ourselves and train ourselves in life skills. We surely had an extremely useful session. Thank you to all our participants as well. Now we will have a break for 20 minutes